की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में उठा संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मुद्दा। चर्चा के लिए सभापति की अनुमति के बाद महिला सदस्यों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर दिया जोर। लगातार दूसरे दिन सदन में सुचारू तरीके से चला शून्यकाल और प्रश्नकाल। लोकसभा में राफेल मुद्दे पर आगे की चर्चा जारी। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्यों ने रखे विचार। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी कांग्रेस। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज दे सकती हैं चर्चा का जवाब। अयोध्या भूमि विवाद पर सुनवाई के लिए होगा 3 सदस्यीय बेंच का गठन। सुनवाई की तारीखों पर 10 जनवरी को फैसला करेगी नई पीठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को दी गई है चुनौती। परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा पिछली सरकारों के रवैये से दिल्ली से दूर हुआ मणिपुर। असम के सिलचर में भी जनसभा का कार्यक्रम। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 622 रन बनाकर घोषित की पारी। 159 रन बनाकर नॉट आउट लौटे ऋषभ पंत। सबसे पहले बात संसद सत्र की। राज्यसभा में आज लगातार दूसरे दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज राज्यसभा में सभी दलों की महिला सांसदों ने अपने विचार रखे। शून्यकाल के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने महिला सांसदों को इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी और हर एक सदस्य को 2 मिनट तक बोलने का मौका दिया गया। The women members of the house, they have given notice and they have also met me and they made a request in the house also that they may be permitted to raise the issue of lack of proper representation for women in parliament. I would like to remind all the members, including those honorable women members, that this house has already approved the registration and it has to be done by the other house. This is a fact of the matter. I have to place it on the record. And secondly, if the members want to make a submission, I would urge upon every one of them, make out your case. The moment it becomes political, then the purpose is lost. This is what is happening for years together. Keep that in mind. You are free. I have decided now to take up that as the first issue today in the 0 hour. There is an unnecessary rumor that is going around saying that we are against the reservation bill. We are not against the reservation bill. We are for the reservation bill. But we have certain recommendations. The women reservation bill in its present form would only benefit rich and urban women and not the poor and rural women. A provision of sub-reservation for other backward classes, women and Dalit women should be added to the bill with 33% reservation for the same. The party supports the idea of bringing greater representation of women through the bill, but the right to choose and decide the candidates and their seats should remain with the party and not the Election Commission cannot have a say in this regard. This is my party's stand. Bengal and Trinamool have already taken care of women reservations. So, sir, what the Bengal thinks, Bengal's thought today, let India thinks tomorrow. Sir, my party Trinamool Congress is already party in India, which is practical terms has already implemented women reservation even before the bill is passed. There is only one elected woman chief minister in India, that is Mamata Banerjee, sir. Lok Sabha में 11.5% member है और बाकी सब मेल पर्सन 543 में only 11.5%. क्यों सर? आप लोग रिप्रेजेंटेटिव करते हो ना, पंचायत से लेकर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक, तो कहाँ खामियां हैं हम लोगों का?
महिला क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं बोल सकते? तो इसलिए रिजर्वेशन जरूरत है। बिना रिजर्वेशन के महिला को नहीं देंगे, टिकट भी नहीं मिलते ना लोकसभा में, राज्यसभा में तो होता है, पार्टी सिलेक्ट करता है, इसके बाद इलेक्शन होता है। लेकिन लोकसभा, नॉट ओनली लोकसभा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ऐसे ही होता है, असेंबली में तो छोड़िए। So I would urge the central government, bring the bill now. It is the right time. 9 years have passed, but now you have to you bring the bill in the Lok Sabha, pass it in the Lok Sabha, because you have enormous majority. Pass it in the Lok Sabha and bring the bill now that women should be given equal representation, not only 33%. We are asking for equal representation. Thank you. So, and this has to be passed, and I urge the central government that you first recognize a greatest women leader of this century, Right, Dr. Prachi Taligi should be conferred Bharat Ratna, and then you. Same all thing you the are women repeating. Representatives should have equal representation. Right. I feel the provisions in the format of the bill as it is may create unnecessary misunderstandings and animosity, tension among the male aspirants. The rotational provision and few other points deserve more attention and detailing. My second point is, more women in both houses will enhance grace, wisdom, and harmony. Number 3 point, sir, very short point. Anyhow, when the bills are passed in both houses, they should not come as hand-downs from the male members of any party. It should be done with a lot of grace, and deraye durustaye, that should be the feeling. Thank you, sir. Thank you. And I request the government, it is there in their election manifesto. It is a promise which they've given to the nation, and we are all there with them to support them to bring this bill. And DMK has been consistently, our leader Dr. Kalaignar and our present leader Mr. M.K. Stalin, we've always been supporting this bill, and we've written to the government many times to bring this bill and to pass it in the parliament. We are with you, we support this bill, and I think it is very, very, very important. We see what is happening in Sabarimala. We see, women are just, there's so much discrimination against women in this country. So to address that, I think our voices should be heard, and laws cannot be made without women. Thank you, sir. हम चाहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चले, क्योंकि जब तक महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी 33%, जहां आज हम अपने लीडर को, राजीव गांधी जी को याद करते हैं, जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में 33% की और कई स्टेट्स ने उसको 50% भी कर दिया, और आज गांव की म्युनिसिपल कमेटीज की जो उन्नति हो रही है और उनकी जो भागीदारी, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन को हक देने की बात करते हैं, जहां कई ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर विमेन को हक देने की बात, हम उसके हक में हैं, लेकिन सभी विमेन्स का देखना होगा, तब तक एम्पावरमेंट नहीं आ सकती जब तक वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आती है, उनको डिसीजन लेने का हक नहीं मिलता है, उनको लॉ बनाने का हक नहीं मिलता। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, इसमें जो नौकरियां हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की जो सरकारी नौकरियां हैं, उस नौकरी में जो बिहार ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, 35% आरक्षण दिया है नौकरियों में, मैं चाहूंगी कि आज जो चर्चा हो रही है इसमें महिलाओं को नौकरियों में भी 35% आरक्षण मिले और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू कराने का काम किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और रविशंकर जी जो कानून मंत्री जी हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि महिलाओं को जिस तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसमें 3 तलाक की बिल भी यहाँ पे सामने आई हुई है। मैं आप सब लोगों से सदन से प्रार्थना करती हूँ कि आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है, निश्चित ही हमारी बहनें लोग अभी कह रहे थे, चाहे वो उस दल के हों चाहे इस दल के हों, बहनें कह रहे थे कि जहाँ पे मुख्य धारा में निर्णय की बात आती है वहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका हम सम्मान करते हैं, निश्चित ही ऐसा होना चाहिए। पर आप जब से देख रहे होंगे कि आदरणीय
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बागडोर संभाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पे है वहां पर आज 50% आरक्षण 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, जिसके जीते जाते उदाहरण मैं यहाँ पे हूँ। वहीं अगर बात करें तो लोकसभा की, तो राफेल सौदे के मुद्दे पर आज भी लोकसभा में चर्चा जारी है। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए राफेल सौदे पर सवाल खड़े किए। वहीं आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने मामले की जेपीसी जांच की मांग दोहराई। कल गतिरोध की वजह से लोकसभा में इस मुद्दे पर आगे की चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 जनवरी को सदन में नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत की थी। इसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी 2 जनवरी को चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा था कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नीतिगत विषय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी विमान खरीद प्रक्रिया को सही पाया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज चर्चा का जवाब दे सकती हैं। ऐसे मुद्दों पे जांच नहीं करेगी और समस्या सुलझाएगी नहीं। इसको अगर सुलझाना है, इसका हल निकालना है तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही निकाल सकते हैं, जेपीसी से ही निकाल सकते हैं। इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आज हम लगातार दूसरे दिन देख रहे हैं कि पहले राज्यसभा की बात करें तो कार्यवाही अच्छे से चल रही है और आज जिस तरह के विचार खासकर महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आए हैं, वो भी काफी अच्छा रहा। प्रीति, जो आज खास तौर पर बात महिला आरक्षण से शुरू हुई थी और सभापति जी ने विशेष अनुमति दी इस विषय को उठाने के लिए, क्योंकि शून्यकाल में, और अगर आप देखेंगे इसका विस्तृत पृष्ठभूमि देखेंगे तो इसके पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी इस सदन में बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। और इस चर्चा में एक बात जो सदस्यों ने उठाई थी वो ये उठाई थी कि जो हमारा वाइस चेयरमैन पैनल है उसमें कोई महिला नहीं है, और इसीलिए उसी के तत्काल बाद जो है सभापति जी ने एक आदेश दिया था कि जो वाइस चेयरमैन पैनल है उसमें काकसा परवीन को शामिल किया जाए। तो आज की जो चर्चा है उसको एक विस्तृत रूप में न केवल विधायिका में महिलाओं की भागीदारी और उनकी क्या स्थिति है, वहाँ से लेकर के नौकरियों और तमाम विसंगतियों को लेकर के बहुत ही जिसको कहिए कम समय में बेहतरीन चर्चा जो है वो सभापति जी के विशेष आदेश पर जो हुई है वो वाकई राज्यसभा की अच्छी चर्चाओं में से एक है। और आप जान रही हैं कि राफेल पर भी लोकसभा में चर्चा चल रही है, जो वो जारी है अभी, और उसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों सदन चल निकले हैं। प्रीति, बिल्कुल फर्स्ट हाफ में अच्छे संकेत मिले हैं और आज गैर सरकारी विधेयकों का भी दिन है, तो देखना होगा कि सेकंड हाफ में किस तरह से उस पर चर्चा आगे बढ़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रिजर्व बैंक से बैंकों के लिए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स यानी एक निश्चित रकम की अनिवार्यता में ढील देने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट को गुरुवार को संसद में पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बैंक को अपने पर्यवेक्षी यानी देखरेख के ढांचे में सुधार करने की जरूरत है। समिति ने सरकार से एक खास समिति के गठन की सिफारिश की है जो आरबीआई की नियामक जिम्मेवारियों के बारे में अध्ययन करके रिपोर्ट दें। समिति ने आरबीआई से भी कहा है कि इस पर विचार करें कि उसके बैंकों में होने वाली धांधलियों से निपटने के लिए तैयार की गई गाइडलाइंस कितनी कारगर है। कांग्रेस के नेता एम वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में बनी इस समिति ने यह भी सुझाया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रमुखों की सेवा निवृत्ति आयु को बढ़ाकर 70 साल कर दिया जाए और इन बैंकों में कर्मचारियों की क्षमता का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी और 3 जजों की इस पीठ का गठन 10 जनवरी से पहले ही कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस.के. कौल की 2 जजों की बेंच ने आज कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए गठित की जाने वाली उचित पीठ ही 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई की तारीखों के बारे में आगे के आदेश पारित करेगी। इसके साथ ये साफ हो गया है कि नई बेंच ही तय करेगी कि मामले की सुनवाई कब से की जाए। जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए कोई विशेष पीठ नहीं थी। नहीं, अब 10 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा। अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा और अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी डेट कौन सी लगानी है। 10 को तो अभी चूंकि 3 जजेस की बेंच बनेगी तो 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा
और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले में फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब अप्रोप्रिएट बेंच या विशेष पीठ के सामने लगाया जाए। तो 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। अयोध्या भूमि विवाद 1950 में शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तकरीबन 8 साल से ये मामला लंबित है। ऐसे में अब लोगों को जल्द फैसले का इंतजार है। अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में साल 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई। अब इस मामले में लोगों को जल्द फैसले की आस है। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर मामले में कहा था कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि राम मंदिर का निर्माण संविधान के दायरे में होगा। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए, वहीं सीता रसोई और राम चबूतरा वाला हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए, जबकि बाकी की 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए। लेकिन सहमति नहीं बनने पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बाद में इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी। देखिए, इस मुद्दे पर तो मेरे समझ से अगर डे टू डे हियरिंग अगर सुना जाता तो ये देश के हित के लिए होता। बहुत सारे ऐसे मैटर आए हैं जो मैटर जो है बहुत 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर जो है उसको डिसाइड कर दिया गया। अगर इस मुद्दे को त्वरित अगर न्याय देती है तो निश्चित रूप से यह जनमानस का आदर होगा और सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतिष्ठा लोगों के नज़रों में बढ़ेगी। अयोध्या भूमि विवाद 1950 में शुरू हुआ था, जो अभी तक चला आ रहा है। इन 7 दशकों में कई सरकारें बदली और उनका रुख भी बदला, लेकिन लोगों का इंतजार अब भी जारी है। विपिन चौहान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए विस्तार से जानते हैं आज क्या कुछ कोर्ट ने कहा है इस मामले की सुनवाई को लेकर। हमारे संवाददाता विपिन चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या कुछ साफ किया है आज कोर्ट ने इस मामले को लेकर। प्रीति, जैसा कि आज ये मामला लगा हुआ था चीफ जस्टिस की बेंच के सामने, और तकनीकी तौर पर अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस की बेंच जो 2 जजेस की बेंच थी वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती थी। तो जो अप्रोप्रिएट बेंच बनानी थी उसका जो गठन की प्रक्रिया थी उसकी तारीख सुनिश्चित हो गई है, जिसके बाद ये प्रॉपर बेंच इसको आगे सुनवाई करेगी। और जो मामला चला आ रहा है 2010 के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस मामले में आगे किस तरह का हल निकलने की कोशिश की जाएगी, इसमें आगे प्रॉपर तरीके से अब सुनवाई होगी। वो 10 तारीख के बाद ही तय हो पाएगा कि अब किस तरह से इसे फास्ट ट्रैक पे सुनवाई की जाए या किस तरह से इस मामले की सुनवाई की जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई करेगी और 10 जनवरी को ये बेंच सुनवाई करेगी और 3 जजों की पीठ का गठन किया जाएगा जो 10 जनवरी से पहले कर लिया जाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्य परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और असम के दौरे पर हैं। इम्फाल में प्रधानमंत्री ने आज 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में मोहरे में एकीकृत चेक पोस्ट, दोलाईथाबी बैराज परियोजना, साउम्बंग में FCI खाद्य भंडारण गोदाम, थंगल सुरुनंगन में इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स और विभिन्न जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 400 किलोवाट की डबल सर्किट सिलचर इम्फाल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने धनन मंजूरी विश्वविद्यालय, इम्फाल की संरचना विकास, खेल सुविधाएं जैसी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इम्फाल पूर्व जिले में हप्ता कंजीबंग में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा
कि मणिपुर में कई परियोजनाएं सालों पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुरानी सरकारों के रवैये ने मणिपुर को दिल्ली से दूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चला रही है वो भी यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों से जुड़ी हैं और इनमें मणिपुर में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने बीते 4.5 साल में 30 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया। मणिपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री असम के लिए रवाना होंगे, जहां उनका सिलचर के रामनगर में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ये प्रधानमंत्री का पहला सिलचर दौरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मोइरांग में अविभाजित भारत की पहली अंतरिम सरकार, उसका गठन हुआ था। पूर्वोत्तर के हमारे साथियों ने तब आजाद हिंद फौज को भरपूर सहयोग दिया। एक कहावत उस समय बहुत ही प्रचलित थी, नॉन पोक थोंग हंगानी, यानी स्वतंत्रता का रास्ता पूरब के द्वार से ही खुलेगा। खेल की दुनिया से अहम खबर, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में बिना विकेट गंवाए 24 रन बना लिए हैं। मार्कस हैरिस 19 और उस्मान ख्वाजा 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। वहीं चेतेश्वर पुजारा के 193 रन और ऋषभ पंत के 159 रनों की बेहतरीन शतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया मैच के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंच गई। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 7 विकेट में 622 रन बनाकर घोषित कर दी। वहीं कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 303 रन था। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।